Good morning, everyone. Very, very good morning. Happy New Year. I'm sure I've got a lot of messages from people. Subodh, welcome everyone who've been waiting for Expert Speak. We had a lovely holiday. We had a Christmas break, New Year holiday, and we're back with a bang. Now, I firstly would request all of you to keep your videos open. A lot of you have, but let's start with that. Are you all charged up to join us every week for the Power Packed Expert Speak sessions? For those of you who are new here, the Plan to Win program is a life management system that will give you not only the strategies and the techniques, but also the attitude you need to win your life and make most of your precious time. This is a space which will move you towards creating and realizing your goals. And today I'm going to share a very interesting incident with you. So a few weeks back, before Christmas, I was purchasing cheese from a departmental store for a weekend party. At the checkout, after going through a lot of options, I went to the checkout. The cashier, the lady, she was very sweet, and she told me, "Ma'am, you have chosen a smaller size, but I looked it up and the larger size is about 80 rupees less than this. It must be on sale or something. So would you like to get me, would you like me to get the larger size for you?" Honestly, I never expected somebody at the cash counter not to, to tell me this. It was really a surprise for me and I was delighted. There were so many options of department store, but she had a customer for life now. So I told the story to everyone at home that this is what happened. And now I'm sharing it here. So being memorable is a key to success, but this can be very difficult to achieve. Customer delight goes beyond providing great products and services and solid customer support. It is showing up that you care in ways that can surprise your customers. And Brian Tracy says, when you delight your customers, you are on your way to creating an exceptional and highly profitable business. Welcome to Plan to Win Experts Week session on customer delight. I'm your host and Plan to Win super leader, Geetanjali Kasriwal. Today, we're honored to have with us Mr. Nilesh Surana as our speaker. We all know him very well. He's also been a coach in Landmark and a mentor to so many of us. Mr. Nilesh Surana has received various awards in training and sales. His company, Benchmark Consultancy, has been instrumental in providing lean consultancy to more than 100 plus organizations covering various facets, such as manufacturing industries, hospitals, traders, educational institutions, and various other service-oriented industries. Nilesh, without spending more time, I will hand over the podium to you to please share with us the formulae for exponential growth in business and a foundation for life. Thank you. Okay, good morning everyone. आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. मैं जानता हूँ क्या. Good morning. Very good morning, Nilesh ji. Very good morning. Very good morning, sir. Good morning. Good morning, Nilesh ji. Good morning. मेरा एक निवेदन है, मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ. तो अगर ये इंटरेक्टिव करना है तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो ऑन कर लीजिए. सो वी विल वेट फॉर 30 सेकंड ताकि सभी लोग वीडियो ऑन कर सके. जस्ट वेट फॉर 30 सेकंड ताकि अभय कुमार, हर्षा, everybody please keep your video on. Rajesh, Pratima Sethi, Ulka Jagtap, Archana, Hemant Gulati. Shivali Singh, Benal Patil,
सभी से रिक्वेस्ट है, खुशबू 10 मोर सेकंड्स, सब लोग वीडियो ऑन कर रहे हैं। थैंक यू हर्षा। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वीडियो ऑन रखें ताकि मैं आपसे बातचीत कर सकूं। मेरा नाम नीलेश सुराना और मैं लैंडमार्क में कम्युनिकेशन कोर्स लीड करता था। एट द सेम टाइम मैं अभी लीडरशिप फ्रॉम द इमर्जिंग फ्यूचर्स ग्रुप में हूँ, जिसमें फर्डी डिसूजा जिन्होंने लैंडमार्क को करीब आई थिंक 30 years ही सर्व लैंडमार्क। Manoj Omkar, he is a business consultant. He served, I don't know how many organization and landmark for a decade, I think 35 years. Then Vivek Chopra. So I'm part of emerging future और मैं कोशिश करता हूँ, मेरा काम है लोगों का मुनाफा बढ़ाना। तो आप में से कितने लोग मुनाफा बढ़ाना चाहते हो? Raise your hand. शर्माने की बात नहीं है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मुझे पास ऑन कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपके पास ही रहना चाहिए, लेकिन बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, रेडी? ओके, तो आप सभी लोगों को मुनाफा बढ़ाने के लिए 2 गोल्डन रूल्स है। रेडी फॉर द गोल्डन रूल्स? यस, नो? ओके, फर्स्ट गोल्डन रूल, वीडियो ऑन रहना चाहिए, ऑन ऑफ नहीं होना चाहिए, ऑन रहना चाहिए। और सेकंड गोल्डन रूल, आप मुझसे बातचीत करते रहोगे। मैं अकेला बातचीत करूंगा सागर, तो आप पक जाओगे, लेकिन आप और मैं बातचीत करेंगे तो कुछ हम दोनों मिलके नया क्रिएट करेंगे। तो उत्तरा, आर यू प्रॉमिसिंग मी कि आप मुझसे बातचीत करते रहोगे? Yes. पक्का? 100%? Yes. ओके, थैंक यू वेरी मच। सो मैं सिर्फ उत्तरा से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझसे बातचीत करते रहना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कस्टमर डिलाइट। एक जमाना था कि जिस वक्त अभय कुमार कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात होती थी, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हुआ ना आशित, बहुत खुश होते थे लोग। मतलब मेरे कस्टमर बहुत खुश है, मेरे कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड है। अभी चौधरी जी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आउटडेटेड हो गया है। मतलब आज के डेट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये तो कस्टमर क्या बोलता है हमारा में हेमंत आजकल, सेटिस्फेक्शन मतलब ये तो आपकी ड्यूटी है, हम लोगों को सेटिस्फाइड कराना, ये तो आपका जिम्मेवारी है, इसमें कौन सी नई बात है। तो आजकल लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन से बिल्कुल सुनते नहीं है। और अगर आप देखोगे अर्चना, तो ज्यादातर दुनिया में लोग किस चक्कर में है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस कि लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर डिलाइट? मैं आप सभी लोगों से जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन customer satisfaction and customer delight? When customer gets wow service, it's a delight for customer. Wow. Something extraordinary. Yes, something beyond expectation, probably. Yes. Something more in use value than cash value. Right. Okay. Very good. Go ahead. Up. Sir, Customer delight is more about the relationship with customer. सर एक एग्जांपल देना चाहूंगी टाटा ग्रुप के। आई मीन जब ताज में अटैक हुआ था तो कोई भी आई मीन एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गए थे। सो दैट इज एन ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ हाउ ताज पीपल सर्व पीपल, द कस्टमर डिलाइट दैट यू रिमेंबर फॉरएवर। राइट, ओके। Nilesh. Yeah, Uttara. Yeah, we have my mother 30 years ago. My mother was running a shop. It was only a vada pav shop, and she was it was her shop, and I used to go there to help to help her. And they were giving the vada pav in a piece of paper. They used to cut the papers, and in that, one customer suddenly came to me. On a plate.
we had lots of business. People used to stand in line. But then I told my mother, no, Mama, what is it if it is only one vada pav? But he wants a plate. We have to give a plate. And I will tell you, vada pav is so bad for health. But that customer started coming every day, only because we gave him a plate, a paper plate, which was costing maybe 1 rupee, 2 rupee, whatever it is. Yeah, very good. Great. Thank you, Uttara. So what is the difference between customer satisfaction and customer delight? See, once you provide some service, that what the customer is expecting from you would be a satisfaction. And once you provide some service or some product which he was not expecting out of you, might be the customer delight. Right. Okay. Very good. Classic. I think Vijay. So exceeding the expectations of the customer will create customer delight. Right. Okay. Very good. Classic. Put some lights in front of customer that will show him opportunities for his business. Right. Very good. Classic. Nilesh sir, like I'm into crystal jewelry and I do crystal as healing stones as well. So when I sell my crystals from the shop, then I tell people about properties of crystals, how it can enhance their day-to-day life. But once I do the sales and once people take the crystals, after 1 week, I give them a reminder because there's a way to keep crystals and clean them. So once I start to give them reminders about how to keep their crystals clean and use them again. So that is what makes them really happy, because for me, I also feel that, if they've taken something from the shop and if they're using something which is helping them improve their lives, they should do it in a proper way. So it works as a win-win situation for both of us. Got it. Great. Thank you, Shivali. Thank you very much. Yeah. Also, what I believe is it is more personal. The delight is personal, something personal for that person. Something extra for that individual. So that makes a lot of difference. Thanks. Right. Very good. Classic. Customer something like he is expecting, but he is not asking for it. For example, मैं बॉम्बे में जूस पीता हूँ, मेरा जूस का गिलास जब खत्म होता है ना, तो थोड़ा और मुझे दे देता है. So I think that is a delight. Yeah. Yes, very good. Yeah, very good. Very well said. By the way, आप सब लोगों के जवाब से मैं delighted हूँ फिलहाल. Yeah, because you delight by your participation right now. आप लोगों के जवाब से I'm really delighted. अगर आप लोग जवाब नहीं देते थे और सिर्फ यहाँ पे सुनते थे और मैं दीवारों से बातें करता था, आप सेटिस्फाइड तो हो जाते थे, मैं भी सेटिस्फाइड हो जाता था कि मुझे मौका मिला, लेकिन डिलाइट क्रिएट नहीं होता था. It means customer has to declare that he is satisfied. That is the delight. He should understand and he should declare that he is satisfied, not just for the survey purpose. Customer should convince himself that he is satisfied. So that is the delight. His declaration. Very well said, Devin. Very well said. Right. So I will give you a few examples ताकि आप लोगों के लिए ये जो टूल है पूरा अलाइव हो जाए. I'm sure कि बहुत कम समय है, लेकिन मैं जितना भी क्रिएट कर पाऊंगा I will create with you. मैं चाहता हूं कि हम लोग इसको हंस खेल के क्रिएट करें, ना कि हम लोग बहुत सीरियस होकर करें. हम डिलाइट की बात कर रहे हैं और हम परेशान आत्मा की जैसे सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगता. तो आप सभी लोग आपका फेस वैल्यू ऐड कर सकते हैं स्माइल से या जैसे भी आप ऐड कर सकते हैं. राइट. सो मेक श्योर आपका बॉडी लैंग्वेज भी लोगों के लिए डिलाइट करता है. राइट. थैंक यू वेरी मच. सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके लिए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. मतलब अभी 5 मिनट के अंदर आप लोगों के लिए क्रिएट हो जाएगा. और विकास, आप, सोनाली, दर्शना, आप लोगों ने वो सेशन अटेंड किया था, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग यहाँ पे जवाब ना दें जिन्होंने वो मेरा सेशन लाइव सेशन अटेंड किया था, ताकि बाकी के लोगों को मौका मिले और वो लोग ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके. मतलब मैं आपको रोकना नहीं चाहता हूँ विकास, आपके सेल्फ एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस, लेकिन उसका क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हो जाना चाहिए. दैट्स द इंटेंशन.
अभी अगर आप देखोगे एक सीरियल का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। आप में से कितने लोग जानते हैं इस सीरियल का नाम कौन बनेगा करोड़पति? How many of you are aware about this serial? मतलब एक्चुअली मैंने सवाल ही गलत पूछा है, ये सवाल ही नहीं पूछा। एवरीबडी नोज अबाउट द कौन बनेगा करोड़पति। लेकिन आप अगर देखोगे ना, सेम ऐसा ही एक सीरियल आया था जिसका नाम था 10 का दम, और एक सीरियल था क्या आप 5वीं पास है क्या, या 5वीं फेल है क्या, आई एम नॉट श्योर क्या नाम था, लेकिन शायद क्या आप 5वीं पास है क्या। कंपटीशन में 3 सीरियल बनाए, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति आया तो गीतांजलि उन्होंने सोचा कि शाहरुख भी सुपरस्टार है तो एक सीरियल बनाते हैं, क्या 5वीं फेल है क्या। उसके बाद और एक सीरियल आया था सलमान खान का जो 10 का दम था, जिसमें 10 करोड़ का इनाम था। शिवालिक कौन बनेगा करोड़पति का इनाम 1 करोड़ था। फिर उसके बाद क्या 5वीं फेल है क्या, उसका पास है क्या, उसका 5 करोड़ था, और 10 करोड़ रुपए 10 का दम था। तो अगर देखा जाए तो कस्टमर को सबसे ज्यादा पैसे किस में मिलने वाले थे, 10 का दम में या फिर शाहरुख खान में। लेकिन सीरियल कौन सा हिट हुआ चौधरी, कौन बनेगा करोड़पति। एनी आइडिया कि यही सीरियल क्यों ज्यादा हिट हुआ और बाकी 2 लोग क्यों नहीं हिट हुए, जबकि कस्टमर को ज्यादा पैसे दे रहे थे। आपकी क्या क्यों होगा कि यार वो लोग तो ज्यादा पैसे दे रहे थे तो वहां पे लोगों ने ज्यादा जाना चाहिए था, तो कौन बनेगा करोड़पति हिट ही नहीं होना चाहिए था। वैल्यू वाइज पैसे तो वो 2 सीरियल में जाता था। अमिताभ बच्चन का जो बोलने का तरीका, डिलाइट और व्हाटएवर इट मे बी, दैट वाज द मेन रीजन। राइट, ओके, वेरी गुड, वेरी वेल सेड। ओके, और बताया सब लोग। आप, मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा पार्टिसिपेट करें। आपको आप जितना खुलकर बात करोगे उतना अच्छा रहेगा। कौन कंपनी का करोड़पति ज्यादा एंटरटेनिंग था, एंटरटेनिंग है अभी भी। ओके ओके, यस, ओके, और क्या वजह? यस महेश। Perhaps it was inspiration from one of the international show. ओके, लेकिन मतलब अगर 10 कदम भी तो बहुत ही अच्छा था, so what's the problem? Fool proof procedure नहीं था। ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू। अमिताभ बच्चन हर पार्टिसिपेंट से कनेक्ट हो जाते थे। करेक्ट, ओके ओके, और क्या वजह थी? अमिताभ focus was on the part. The intention of the program was knowledge and learning. So knowledge को उन्होंने promote किया, and if you are knowledgeable, you are sure to win. ये उसका theme था, which make more difference. Okay, very, thank you, thank you. पार्टिसिपेंट के बारे में और उनकी डेप्थ में पता करके कुछ नया निकालते थे, तो इट इज लाइक getting to know those situations and participants even more which you don't know. Right, okay, very good, very good, thank you very much for your participation. तो अगर आप देखोगे तो तीनों सीरियल बहुत ही बेहतरीन थे, सिर्फ एक ही अंतर था कि दोनों सीरियल में कस्टमर सेटिस्फैक्शन था और शायद ये सीरियल में कस्टमर डिलाइट था, क्योंकि 10 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता है। आप में से किसी को अभी बोल दिया ना कि भाई एक 10 करोड़ मिलने वाले, आप एक क्विज में आ जाओ, तो आप लोग अभी बोलोगे प्लान टू विन तो हर वीक चलता रहेगा, मैं पहले अटेंड करके आता हूँ भाई साहब, इसका तो मैं रिकॉर्डिंग भी सुन लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर आप देखोगे तो 10 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। लेकिन सेटिस्फैक्शन था, डिलाइट नहीं था। आई डोंट नो अबाउट क्या 5वीं पास है क्या, लेकिन उसमें कुछ सवाल के बाद लोगों को एक सवाल पूछा जाता था कि ये तो दूसरी कक्षा का सवाल था। तो जैसे ही लोगों को लगता था अरे मैं दूसरी कक्षा का भी जवाब नहीं दे पाया, लोगों को लगता था कि शायद मुझे कुछ भी नहीं आता है। और जैसे ही वो एक्सपीरियंस होता था तो लोग वहां से विड्रॉ करना स्टार्ट करते थे, क्योंकि पब्लिकली बेइज्जती होते हुए कोई किसी को अच्छा नहीं लगता है। मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है
शाहरुख जी के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि ही इज द बेस्ट एक्टर ऑन द प्लैनेट. आई एम हैविंग ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर सलमान खान. ही इज द बेस्ट एक्टर ऑन द प्लैनेट. एट द सेम टाइम दे सेटिस्फाइड द कस्टमर, डिलाइट नहीं हो पाया. तो अमिताभ ने कौन बनेगा करोड़पति में, आप अमिताभ बच्चन के बजाय कोई भी इंसान को रिप्लेस कर लो, मतलब कोई भी सुपरस्टार को रिप्लेस कर लो. आप में से कितने लोग सोचते हैं कि सेम उतना ही अच्छा चलेगा कौन बनेगा करोड़पति अगर अमिताभ को रिप्लेस कर दिया तो? हेलो, नहीं चलेगा उतना अच्छा, चलेगा, राइट? क्योंकि बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उसकी अमिताभ बच्चन में एक क्वालिटी 100% है कि वो कस्टमर को डिलाइट करता है. इट्स नॉट अबाउट द सीरियल, इट्स अबाउट द क्वालिटी कस्टमर डिलाइट. तो अमिताभ के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी है कस्टमर डिलाइट का. मतलब अमिताभ जहां पे खड़े होते हैं वहां डिलाइट से ही स्टार्ट होता है. तो कैसे करते हैं डिलाइट? सो आप लोग नोटिस कीजिए अभी, ताकि हम लोग है ना अपने लाइफ में उसको लेकर जा सके. मेरा आपसे निवेदन है कि ये सेशन सागर हमने इसलिए नहीं सुनना है कि हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए. ये सेशन इसलिए सुनना है कि 9:05 पे आप में से कई लोगों का कस्टमर डिलाइट का ब्रेन पैटर्न बन जाना चाहिए. हाउ मेनी ऑफ यू अलाइन कि आपका ब्रेन पैटर्न ही कस्टमर डिलाइट का बन जाए आने वाले 9 बजे तक? तो इट्स वर्थ टू अटेंड द सेशन. 100% रेडी? तो क्या था अमिताभ में? तो सबसे बहुत ही सिंपल चीज थी उसके अंदर हर्षदा, जो मुझे बहुत ही इंस्पायर करती थी, जो राजेश मैं देखता था उसके अंदर. वो एक चीज थी कि वो हर कस्टमर को अटेंड करने के लिए खुद जाता था. मतलब अगर कोई कस्टमर बजर दबाएगा और वो जीता है तो इमीडिएटली गुंजन उसकी आदत क्या थी, वो कस्टमर को रिसीव करने के लिए वहां पर जाता था. मतलब वो ऐसा नहीं था कि कस्टमर उसके पास आता था, वो कस्टमर को रिसीव करने जाता था. अभी अगर आप देखोगे, आप किसी शॉप में जाते होंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते होंगे, आपको लगता है कस्टमर को लोग रिसीव करने जाते हैं या कस्टमर खुद ब खुद अंदर आ जाता है? खुद आता है, खुद आता है, खुद आता है. उसको रिसीव करने के लिए कोई जाता नहीं है. लेकिन अमिताभ की एक आदत थी, अमिताभ चाहे तो ऐसा भी बोल सकता था ना, अगर फॉर एग्जांपल एक कस्टमर का नाम सचिन है, सचिन जल्दी आओ बैठो देर हो रही है, तो भी कस्टमर डांस करते हुए आएगा कि अमिताभ ने आवाज दी. लेकिन एक साधारण इंसान, जो कोई टीचर है, कोई रिक्शा वाला है, कोई हाउसवाइफ है, कोई भी साधारण से साधारण इंसान है, अमिताभ की एक खासियत थी कि वो उसको रिसीव करने के लिए वहां पे जाता है. इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट विजय, हमारे रियल लाइफ में हम लोग उन लोगों को रिसीव करते हैं जिनके बारे में हमें बहुत रिस्पेक्ट है, या हमारा बहुत ही अच्छा लिसनिंग है, या उन्होंने बहुत सक्सेस स्टोरी कॉज किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई कलेक्टर आ गया तो लोग अलग से रिसीव करेंगे, कोई वॉचमैन आया तो उसको अलग से रिसीव करेंगे. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? तो कलेक्टर और वॉचमैन का रिसीविंग का आपका तरीका ही चेंज हो जाएगा. मतलब कल मैं यहाँ पे आया हूँ, आई मीन मध्य प्रदेश राइट नाउ, मैं मेरे टाउन में नहीं हूँ. वंदना, मैं दिनेश की बदौलत अनूपपुर में आया हूँ, हिंदुस्तान पावर में. तो वहां पे मैं जिस गेट पे आया था वहां पे रिसीव करने के लिए मुझे 3 लोग आए थे. आई एम श्योर कि जैसे मेरे लिए 3 लोग आए होंगे और किसी के लिए कोई 3 लोग नहीं आते वहां पे रिसीव करने के लिए. इनफैक्ट हर्षदा और कोई आएगा तो शायद उनको रुकना भी पड़ सकता है. राइट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस कि लोग रिसीव करते हैं उन्हीं लोगों को जो बहुत सक्सेसफुल है या जिनके बारे में आपको बहुत रिस्पेक्ट. इससे क्या फर्क पड़ता है? अमिताभ के और हमारे रवैये में क्या फर्क है? व्हाट डू यू थिंक? ये दोनों के तरीके में क्या फर्क है? हर पर्सन को रिस्पेक्ट करना. राइट, ओके. चाहे छोटा हो चाहे बड़ा. राइट, ओके. with our एंड स्पेशल, और उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए. give respect and take respect.
Right, classic. We are limiting opportunities. You are limiting the opportunities. Okay, very good. ईगो सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए. राइट. अगर हम देखेंगे ना, तो मैं तो हमारे यहाँ कभी कभी शादियों में जाता हूँ ना, तो लोग है ना, नहीं उसका 1000 करोड़ का बिजनेस है, तो उसके आसपास 25-30 लोग रहेंगे. और कोई बहुत ही विजडम वाला है, जिन्होंने पूरे दुनिया में कोई फर्क डाला है, लेकिन उसके पास 1000 करोड़ रुपए नहीं है, तो वो अकेला खाना खाता रहता है. तो आप देखोगे तो यहीं पे अमिताभ बच्चन और हमारे में फर्क है. अमिताभ बच्चन का लोगों की तरफ देखने का नजरिया बहुत अलग है. तो क्या है मधुर उनका देखने का नजरिया? मधुर उसका नजरिया यह है, अमिताभ बच्चन ऐसा सोचता है कि जब मैं एक कॉमन मैन को टच करता हूं, तो टीवी पे देखने वाले 1 करोड़ कॉमन मैन के हार्ट को मैं टच कर पाता हूं. जब मैं एक बहुत अमीर आदमी को टच करता हूं, तो मैं शायद 50-100 लोगों के हार्ट को ही टच कर पाऊंगा. तो ग्रेविटी बहुत ही बड़ा होता है जब आप साधारण इंसान के साथ रहते हो. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस कि ह्यूज, इट्स अ वेरी ह्यूज. यही वजह है कि अमिताभ बच्चन का जो शो स्टार्ट होता है, तो और खास बात यह है कि लवीना वो खुद लेकर जाता है अपने कस्टमर को. मतलब वो बोलता है चलिए आप आपके साथ खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति. उसके बाद उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो सबसे पहले अपने कस्टमर को चेयर ऑफर करता है, फिर जीतू वो खुद चेयर पे बैठता है. आप ज्यादातर शॉप में आज जाके चेक कर लेना, लोग चेयर ऑफर नहीं करते हैं. जो बैठा हुआ रहता है शॉप में, ब्रिज, वो चेयर पे बैठा हुआ रहता है ऐसा, और कस्टमर आके खुद अपनी चेयर ढूंढ लेते हैं. और कुछ कुछ शॉप में तो चेयर भी नहीं मिलती बेचारे को. हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस कि लोग, मतलब कितना फर्क है कि अभी अमिताभ को इतना रिस्पेक्ट देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सुबोध वो सामने वाले को पहले चेयर ऑफर करता है और फिर खुद चेयर पे बैठता है. और उसका चेयर ऑफर करने का भी तरीका इतना बेहतरीन है कि मतलब सामने वाले को ऐसा लगता है कि बस अभी 1 करोड़ नहीं मिला तो चलेगा, अमिताभ जी से मुलाकात हो गई, बस जिंदगी फुलफिल हो गई. लोग बोलते भी आने के बाद उतरा कि मैं अमिताभ से मिल लिया, बस मेरी जिंदगी, मतलब वो गया किस लिए था? 1 करोड़ रुपए जीतने के लिए. और फुलफिल्ड कैसे हो गया अमित? वो किस चीज से फुलफिल्ड हो गया? वो कस्टमर डिलाइट, बीइंग विद अमिताभ. मतलब उसको वो भूल गया कि उसको 1 करोड़ रुपए चाहिए. हेलो, बट सर डज दिस मीन कि सुपरस्टार है अमिताभ जी इसीलिए ये डिलाइट है? ऐसा मतलब अगर मैं अपने ऊपर ये डालती हूँ 1 मिनट के लिए कि मैं मेरे कस्टमर को जाके रिसीव कर रही हूँ और मैं स्पेशली उनको कॉफी पिला के उनका सामान दे रही हूँ, तो will that person feel the same feeling? Might be. अभी हमें ट्रायल लेना पड़ेगा सुमेधा, लेकिन 100% आपका कस्टमर को फील होगा कि यार मेरे पास, आप करें या आपका स्टाफ करे, डजंट मैटर, लेकिन कोई तो चाहिए. अभी ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में कोई नहीं है. हेलो, लोग डिलाइट का मतलब क्या समझते हैं मालूम है? 1 पे 1 फ्री, 50% डिस्काउंट. नॉनसेंस. मेरा प्रोडक्ट सबसे बेहतर है, इससे बड़ा नॉनसेंस दुनिया में कुछ है ही नहीं. इससे बड़ा नॉनसेंस तो कुछ है ही नहीं. आपका कितना भी प्रोडक्ट बेहतर है, दुनिया में 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट शायद आपके प्रोडक्ट से बेहतर हो सकता है. आपका मिथ है कि आपका प्रोडक्ट दुनिया में सबसे बेहतर है, आपकी सर्विस दुनिया में सबसे बेहतर है. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल.
तो अमिताभ का अगर आप देखोगे तो पहला वो जाके रिसीव कर रहा है, फिर वो खुद जाके उस इंसान को चेयर ऑफर कर रहा है, चेयर पे बिठा रहा है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो नम्रता उसके बाद वो बातचीत करता है। तो नम्रता उसका बातचीत करने का भी तरीका ऐसा है जिसमें वो लोगों को ऐसे सवाल पूछता है ताकि उनका टैलेंट सारे दुनिया के सामने आए। वो सवाल ऐसे नहीं पूछता जिससे कि उनका लालच सबके सामने आ जाए। वो ऐसे सवाल नहीं पूछता कि आपको 1 करोड़ रुपए की बहुत जरूरत है इसलिए आए क्या इधर। मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं। मैं एक लोकल शो हुआ था तो वहां पे वो जो इंट्रोड्यूस करने वाला था प्रतिमा, वो इंट्रोड्यूस कैसे कर रहा था, ये आए हैं और इनको बहुत परेशानी थी तो ये अपने शो में आए ताकि 10,000 रुपए की धनराशि ये लेकर जा सके। तो वो इंट्रोड्यूस ही ऐसा कर रहा था कि लोग सुनना ही बंद कर दिया। तो अगर आप अमिताभ को देखेंगे तो इंट्रोड्यूस कैसे कराता है, इंट्रोड्यूस ऐसे करता है सागर, वो बोलता है कि ये यूपी से आए हैं, ये टीचर है और इनके मतलब इन्होंने बच्चों को बहुत बेहतरीन शिक्षा देते हैं और कौन बनेगा करोड़पति से जो धनराशि प्राप्त करे, इसलिए अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, अपने माता पिता के लिए एक मकान बनाना चाहते हैं, उनका सपना पूरा करना चाहते हैं। सामने वाले को फील होता है वाव कि मुझे मेरा इंट्रोडक्शन कैसा किया है, मैं माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। वो ऐसा थोड़ी बोलता है इनको ना मकान बनाने के लिए अभी पैसे नहीं है थोड़े, तो ये कौन बनेगा करोड़पति से जो आएगा ना पैसा, उससे इनके मकान बन जाएंगे। और मतलब इनके औकात तो खुद के मकान बनाने की थी नहीं, तो यहाँ के पैसों से अभी थोड़ा बहुत जो हो जाएगा हो जाएगा। हेलो क्या नोटिस किया आपने अभी तक? मुझे लगता है इसके लिए पहले तो ब्यूटीफुल माइंड चाहिए, ब्यूटीफुल माइंड। या राइट, वेरी वेल सेड राजेश, वेरी वेल सेड। लोगों की जिंदगी में झांक के उनके साथ में कनेक्ट होने की बहुत जरूरत है। राइट, वेरी वेल सेड, बहुत अच्छा पॉइंट आपने नोटिस किया है। ओके, और क्या देखा आपने? Bringing the inner quality of the people. एग्जैक्टली हम जिसको लीन मैनेजमेंट में बोलते हैं, अनयूटिलाइज्ड टैलेंट को यूटिलाइज टैलेंट करना। मतलब आज के डेट में मार्केट में अनयूटिलाइज्ड टैलेंट बहुत है, तो जितना अनयूटिलाइज्ड टैलेंट है अगर आप उसको नोटिस नहीं कर पाए तो आप सामने वाला के लिए वाव फैक्टर नहीं क्रिएट कर सकते। लेकिन जब आप वो अनयूटिलाइज्ड टैलेंट को सबके सामने रख देते हो तो इट्स लाइक वो सामने वाले के लिए वाव फैक्टर क्रिएट हो जाता है। तो जैसे वो बोलता है कि इन्होंने इतने हालात में भी पढ़ाई की, इन्होंने पढ़ाई करके अपनी शिक्षा कंप्लीट की, तो एक्चुअली वो एक पिक्चर क्रिएट करता है जो जिसपे एक मूवी बन सकती है। और वो पिक्चर इतना ब्यूटीफुल होता है और उसमें 100% एक और एक शब्द सच होता है, उसमें से एक भी शब्द देवेन झूठ नहीं होता है। मतलब उसमें हम बोलते हैं ना, आप समझते हैं वो एक कहावत है, चने के झाड़ पे चढ़ाना। हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर? चने के झाड़ पे चढ़ाना मतलब वो नहीं है उसका, इट्स लाइक इट्स अ कंप्लीटली ऑथेंटिक। मतलब वो जो बोल रहा है उसमें एक सच्चाई है, वो जो बोल रहा है वैसा वो देखता है, वैसे उसमें देखने की एक काबिलियत प्राप्त कर ली है। तो वो जब भी किसी के सामने देखता है तो उसको उस इंसान की सबसे बेहतरीन क्वालिटीज नजर आती है। उसे लगता है इससे बेहतरीन क्वालिटीज दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। आपने देखा होगा कई बार वो ये भी बोलता है कि वो उसके बातचीत करने में और एक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन आता है कभी कभी, विकास वर्मा, वो बोलते हैं कि आप इतनी पढ़ाई कैसे कर लेते हो, हम पढ़ाई कर ही नहीं, हमने तो आज तक पढ़ाई की नहीं।
तो सामने वाले को फील होता है कि मैं भी अमिताभ जितना बेहतर हूं, आई एम ग्रेट ह्यूमन बीइंग। वो जो ग्रेटनेस का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो डिलाइट है। डिस्काउंट इज नॉट अ डिलाइट, सर्विस इज नॉट अ डिलाइट, extra services is not delight. It's a add-on. Experiencing being great. हर कस्टमर को एक एहसास होना कि उससे बेहतर इस दुनिया में कोई है ही नहीं, इस पृथ्वी लोक पे मेरे से बेहतर कोई है ही नहीं। वो एक्सपीरियंस क्रिएट करना, उसे डिलाइट कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि आप अभी तक क्या समझ पाए शेयर कीजिए, फिर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ करना चाहूंगा। आपने क्या सीखा अभी तक? जब हम सामने वाले इंसान को आत्मसात कर लेते हैं और उसके बाद में फिर प्रोडक्ट से या अपने सर्विसेज से बैकअप करते हैं, तो वो इंसान आपका जिंदगी भर के लिए कस्टमर बन जाता है, जिंदगी भर के लिए। आप जो कहोगे वो करेगा। दैट इज माय एक्सपीरियंस, जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करने जाऊंगा प्रतिमा शेयर करने से पहले। वसंत जी, वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक्सपेक्टेशन से कर रहे हैं तो आप उसके ग्रेटनेस से नहीं काम कर रहे हो, आप आपके सेल्फिश मोटो से काम कर रहे हो। अरे ऐसा करेंगे ना तो धंधा बढ़ेगा, मतलब तो फिर वो मतलब सॉरी टू से मतलब सब लोगों के लिए है, मेरे लिए इंक्लूडिंग मेरे लिए थोड़ी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कॉमन प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी बेइज्जती करना चाहूंगा सबकी, अगर आप अलाउ करें तो। यस करिए आप। राइट, थैंक यू वेरी मच। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब हम लोग अपने सेल्फिश मोटो के लिए डिलाइट करते हैं तो डिलाइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका फोकस आप पे हो गया, आपका फोकस आपके कस्टमर के ग्रेटनेस पे, उसके बेहतर के लिए नहीं हुआ। इट्स नथिंग टू डू विथ कि वो वापस कभी लाइफ में आएगा। हो सकता है कि आप जितने लोग इस कॉल पे हो लाइफ टाइम में मेरे आप कस्टमर ना बने, लेकिन मैं एक घंटे में जो दूंगा आपको वो हो सकता है कि आपको लाइफ टाइम काम आए। I don't have a single rupees expectation, then I can delight people. Delight is nothing to do with business. Nothing. लेकिन I was talking of the outcome. जो outcome आता है वो उस तरीके का outcome आएगा। You were right. आप सही बोल रहे थे, बस सिर्फ लोग है ना इन ऑर्डर टू ना करे इसके लिए ध्यान रख रहा था वसंत जी। इंसान की फितरत जो होती है ना पहले मैनिपुलेशन वाली होती है, तो मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेशन के गली से रोकना पड़ता है, तो ताकि लोग ऑथेंटिक डिलाइट पे जाए। मेरा इंटेंशन था, जैसे मैं ये प्रोग्राम कई बार लीड करता था ना, तो लोग उस दिन अपने बीवी की तारीफ करने को जाते थे, तो बीवी की तारीफ नहीं करते थे, सब्जी की तारीफ करते थे। नहीं, तेरे हाथ की सब्जी बहुत अच्छी बनी। अरे भाई, तू उसकी तारीफ करना, सब्जी की क्यों तारीफ कर रहे हैं? लेकिन आप अगर देखोगे तो लोग जब भी तारीफ करते हैं या कुछ अच्छा देखते हैं वो इन ऑर्डर टू होता है, जो कि डिलाइट का पार्ट नहीं है। वेरी वेल सेड प्रसन्न जी, थैंक यू वेरी मच फॉर क्रिएटिंग दिस कॉन्वर्सेशन। या प्रतिमा, गो अहेड, आप कुछ बता रहे थे। Giving respect and staying connected with the customers. Right, very well said, very well said. आपने क्या टेक अवे लिया है? आप क्विकली शेयर कीजिए, we have 2 minutes. What's your take away? हाँ? मतलब staying connected is very important rather than selling the product. Yeah, with everyone, whether वो 1 रुपए का प्रोडक्ट हो या 1 लाख का हो या 1 करोड़ का हो. Yeah, first we have to get connected and understand the customer
and then you can sell the product. Or you can sell the product. मैं उल्टा कहूँगा प्रतिमा, people will buy the product. Okay. मैं actually next transformation एक मिनट गीतांजलि, मैं एक सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम करता हूँ ना, उसमें मैं बोलता हूँ कि हमें बेचना है ही नहीं, लोगों ने खरीदना है. Yes. बेचना ही नहीं है, टिल डेथ कुछ भी बेचना नहीं. लोग ऐसे दीवाने हो जाने चाहिए कि बस आपसे खरीद के बस उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए. Yeah. Okay. Very good. Creating value for customers. Yeah. Yeah. Very good. Very well said. Yeah, Gitanjali. Yeah, I was thinking of यही मैं सोच रही थी कि selflessly being in service से connected होना, not in order to, तो फिर outcomes अपने आप कुछ ना कुछ अच्छे ही आएंगे. Seeing what other person needs. Period. Yeah. Yeah. और might be outcome नहीं आएंगे. So what? I take the. Yeah. Go ahead, Mala. Yes, I like to. I take away from this that you have to work very nicely whatever you sell to your customers, and you have to be. You should not have any expectation from any of them, and also you should give a correct mileage to your customer, whatever they buy or they don't buy, and also. Nowadays the time of a social media and all should give them the correct mileage for everything, and that will attract them to come back to you as many times as they wish to, and they will also spread the words of mouth for you, and that will be a real satisfaction, delightness, and happiness for you and your customer. Got it. Thank you, Mala. Yeah, Harshada. Yes, my takeaway from today's session, a customer को ये लगना चाहिए कि do I hear, do I see, do I good enough, do I matter, do I love, and this feeling जब अपने customer को आएगा, so it will be delight. Yeah, right. Very well said, Harshada. Very well said. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. कौन बनेगा करोड़पति चल रहा था और एक हाउसवाइफ आई और वो हाउसवाइफ ने कुछ कहा और अमिताभ ने कहा हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने पूरी जिंदगी भर अपनी पति की, अपने बच्चों की सेवा की और इसके बावजूद आप पढ़ाई भी करते रहे. आपको समय कब मिलता था पढ़ाई करने के लिए? इनके सेवा से समय निकाल के आप कब पढ़ा करते थे? तो वो लेडीज ने कहा कि मैं रात को सब लोग सो जाते थे, उसके बाद पढ़ती थी और मेरे बाजू में मेरी वाइफ बैठी थी और उसके आंखों में आंसू आ गए. So, like वो एक कनेक्ट नहीं था. He was connecting lakhs of dots of housewives. वो जो उसका सवाल था ना, वो सवाल से मैं हेमा वो ना ओलंपिक विनर, क्या नाम इनका, रनिंग में ओलंपिक में हिना दास. तो उसके अगर आपको समय मिला तो वो उनका आप सीरियल देखना अमिताभ बच्चन का. उसके सवाल ही ऐसे डिजाइन किए हुए थे कि वो पूरा हिमा दास का ग्रेटनेस सारी दुनिया के सामने आना चाहिए. मतलब इट्स सो, मतलब वो अगर आपको कभी मौका मिला ना आप सीरियल देखो. तो पॉइंट ये है कि आज जब आप कस्टमर के पास जाओगे या आपके घर वाले आपके इंटरनल कस्टमर है, आपके स्टाफ इंटरनल कस्टमर है. बाय द वे एक्सटर्नल कस्टमर को सेटिस्फाइड करने से पहले आपको डिलाइट करना पड़ता है आपके इंटरनल कस्टमर्स को, मतलब आपका स्टाफ एंड आपके फैमिली मेंबर. अगर आपने आपके इंटरनल कस्टमर के लिए वाव फैक्टर नहीं क्रिएट की तो फॉरगेट कि आप लाइफ टाइम में कभी भी आपके एक्सटर्नल कस्टमर के लिए वाव फैक्टर क्रिएट कर पाओगे. सो आप अगर जब तक इंटरनल कस्टमर के लिए नहीं काम करते हो, उनके लिए वाव फैक्टर क्रिएट नहीं करते हो. मैं 3 दिन पहले की बात, मेरा स्टाफ बैठा हुआ था, एक बहुत ही बड़ी अथॉरिटी हमारे पास आई थी और मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था मेरे स्टाफ को. तो मैंने कहा कि सर ये भरत जी हैं, ये
मेरे साथ पिछले 17 साल से सेवा दे रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, और इन्होंने जितनी बेहतरीन सेवा दी है, मुझे नहीं लगता कि आपको पूरे शहर में इससे बेहतरीन कोई इंसान मिल सकता है। और सिंगल हैंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसने सब कुछ काम किया है। मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे से बेटर कौन है अभी राइट नाउ जो आपको बहुत अच्छी सेवा दे सकता है, तो ये भरत है। तो जो मेरा कस्टमर था, उनको इतना अच्छा लगा कि यार ये भरत इज बेटर देन नीलेश। और भरत के लिए एक्सपीरियंस था कि यार सर सही में मेरी इज्जत करते हैं। अदरवाइज छाया होता क्या है, जब कस्टमर आता है तो लोग अपने स्टाफ को बुलाते हैं और बोलते हैं भरत ये काम कर लो, इनका ये काम है और ये हमारे बहुत ही अच्छे कस्टमर है, आप ध्यान रख लेना। मतलब एक ऑर्डर जाता है, डिलाइट वाला एक्सपीरियंस स्टाफ कर ही नहीं पाता है। तो आज आपका पहला असाइनमेंट है कि आपके लाइफ में जितने लोग हैं उनको डिलाइट करना है। याद रहे, उनकी चीजों को डिलाइट नहीं करना है, आपको उनको डिलाइट करना है। आप में से कितने लोग रेडी है कि आज आपको जो भी दिखेगा उसको आप डिलाइट करोगे, आप उसके ग्रेटनेस को देखोगे, परखोगे और बयां भी करोगे। बयां मतलब आप कम्युनिकेट भी करोगे। जैसे ही ये कॉल खत्म हो जाएगा, आपके सामने जो भी इंसान आएगा, आपका काम है उसको डिलाइट करना, राइट। सो जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉल खत्म हुआ, 9 बजे आपके सामने ब्रेकफास्ट आ गया चौधरी जी, तो मेक श्योर कि आप ऐसे डिलाइट करोगे। मैंने मेरे वाइफ को डिलाइट किया था, मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तू कितनी अच्छी है इसमें डाउट नहीं है मुझे, लेकिन तेरे माता पिता के बहुत अच्छे संस्कार थे इसीलिए तू मेरे साथ रहेगी। तो फॉर माय वाइफ डिलाइट उसकी तारीफ करने से उतना नहीं लगता है उसको, जितना उसके माता पिता के बारे में अच्छा बोलने से उसको लगता है। क्योंकि हर बेटी के लिए, हर लड़की के लिए उसके माता पिता आइडियल होते हैं। उसका पहला प्यार उसके माता पिता होते हैं। और एग्जैक्टली अपोजिट लोग करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं अपने वाइफ को, तेरे माता पिता ने तुझे यही सिखाया है, ऐसे बिहेव करते हैं। लोग कंप्लेन भेजते हैं, जबकि हम लोग तो, मेरे वाइफ के लिए वो बहुत ही गोल्डन मोमेंट था। आई एम श्योर कि आप सब लोग अगर देखोगे तो हम लोग बहुत बार डिलाइट नहीं करते, हम बहुत नॉर्मल बातचीत करते हैं, विच इज अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, दैट्स नॉट अ डिलाइट। मैं चाहूंगा कि आप याद रखें, फेक डिलाइट नहीं हो सकता है। अगर आप दिल से कर रहे हो, आप सही में दिमाग से कर रहे हो, तो ही डिलाइट हो सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि बिजनेस बढ़ाने के लिए आप डिलाइट करना चाहते हो, तो आपने गलत प्रोग्राम कर लिया। डिलाइट इज अ नेचुरल वे ऑफ लाइफ है, इट्स नॉट इन ऑर्डर टू। अमिताभ हर किसी को डिलाइट करता है। अगर आप उसका ट्विटर पढ़ोगे, तो आप ट्विटर पढ़ोगे ना तो आप हक्के बक्के रह जाओगे। अगर आप हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, उनका ट्विटर पढ़ोगे तो हर बार वो डिलाइट करते रहते हैं। मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर का एक प्रोग्राम किया था चार्टर्ड अकाउंटेंट का साथ, तो वो लाइव सेशन में देख रहा था, तो उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहा कि जितनी मेरी देशभक्ति है उतनी ही आप लोगों की देशभक्ति है, आपके और मेरे देशभक्ति में कोई अंतर नहीं है। जब सेंटेंस ही यहां से स्टार्ट हुआ, आपको क्या लगता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो रूम में से जाने के बाद देशभक्त गण बन के गया होगा या उसके ओरिजिनल पैटर्न में बाहर गया होगा? हेलो, देशभक्त। देशभक्त, टोटली अ न्यू पर्सन। टोटली अ न्यू पर्सन। एक मिनट में उन्होंने बोला कि आपकी देशभक्ति और मेरे देशभक्ति। इतनी तालियां बजी उस मिनट पे, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को आज तक किसी ने अच्छा बोला ही नहीं था इतना। गीतांजलि, मैं जानता हूं कि मुझे कंप्लीट करना चाहिए, आपके अनाउंसमेंट्स है। मैं आई विल टेक ओनली 2-3 मिनट्स, ताकि वो लोग एग्जाम्पल के साथ
जाए। अमिताभ बच्चन का मैंने एक लाइव प्रोग्राम देखा था, पुलिस आए थे हमारे यहाँ, पुलिस वालों ने एक प्रोग्राम रखा था अपाहिज लोगों के लिए, एक कलेक्शन कर रहे थे। तो जैसे ही कलेक्शन के लिए आए तो अमित ठाकुर, वो अमिताभ बच्चन खड़े हो गए। अमिताभ बच्चन ने बोले मैंने सोचा था कि पुलिस वाले हमारी सुरक्षा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। मैंने पहले बार ऐसे पुलिस वाले देखे हैं जो सिर्फ देश की सुरक्षा, हमारी सेवा ही नहीं करते, वो अपाहिज लोगों के लिए फंड रेजिंग का प्रोग्राम करके उनकी भी सेवा करते हैं। उसने पुलिस वालों के बारे में कम से कम 12 से 14 मिनट अच्छी बात की। मैं पीछे बैठा हुआ था, जितने भी वहां पे हवालदार, पीएसआई वगैरह सब खड़े थे ना, हेमंत गुलाटी फूट फूट के हर पुलिस वाला रो रहा था, क्योंकि पुलिस वालों के बारे में इतना अच्छा सोचने वाला लीडर उन्होंने आज तक देखा ही नहीं था। आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया है, जब भी लोग पुलिस के बारे में बात करते हैं तो गलत बात ज्यादा करते हैं, पॉजिटिव बात कम करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस दैट? लेकिन वो जो तरीका था अमिताभ का, इट वाज सो अमेजिंग। मैं इसके साथ ही और भी बहुत सारी बातचीत करना चाहता था, मुझे एक्सेलेंस पे भी बात करनी थी, लेकिन मौका, अभी समय बहुत ही कम है। और एक चीज बहुत ही अच्छी है प्लान टू विन की, ये लोग समय के बड़े पाबंद हैं, तो ये लोग स्टार्ट भी राइट टाइम करते हैं और खत्म भी राइट टाइम करते हैं। नाम बड़ा बेहतरीन है, प्लान टू विन। मुझे ये नाम जिसने भी रखा है उसको सैल्यूट, कि ऐसा नाम कहाँ से सूझा आई डोंट नो, लेकिन बहुत ही बेहतरीन नाम है। थैंक यू गीतांजलि। मैं अपने शब्दों को पुनः विराम देना चाहूंगा। मेरे से अगर किसी का दिल दुखा होगा तो मुझे माफ कर देना। थैंक यू वेरी मच। गो अहेड गीतांजलि। नीलेश भाई, आपका कितने भी शब्दों में अगर कहा जाए तो वो छोटे पड़ेंगे। मेरे पास शब्द ही नहीं है आपके हर सेशन के अंदर। आप जो जिस सूक्ष्मता से दिल को छूते हैं, that is uniquely yours. Every time we are left with feeling great, feeling touched, moved, inspired, and time की पाबंदी आप ही ने सिखाई है in Landmark. So and इसीलिए we have requested you to be part of Plan to Win at least once a month by popular demand. We are looking forward to many more such sessions. And authentic delight, मेरे को लग रहा है मैंने टाइटल गलत दे दिया कि कस्टमर डिलाइट की जगह मुझे खाली डिलाइट देना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो वो कस्टमर है ही नहीं. इट इज जस्ट अबाउट बीइंग इन द सर्विस ऑफ सेल्फलेसली and giving the experience of greatness. That is my takeaway. I'm sure everybody has a takeaway. I will now hand over to Darshana, who is like you asked the name किसने सुझाया, तो ये इसके पीछे दर्शना का हाथ है. It's also part of Plan to Win. She's one of the founders here. So Darshana, please take over and would extend your vote of thanks. Great. Yeah. Thank you so much, Gitanjali. So Nilesh ji is my personal favorite. I have done my communication access to power. He was the leader. He was the person who has given me the access to the power of communication. So thank you, Nilesh ji. ये 5 साल पहले की बात है. I think 4 साल पहले की बात है जब मैं नीलेश जी से पहली बार मिली थी. And yes, Plan to Win is, an extension of a communication program, team management leadership program that I did by Landmark. बेहतरीन बात क्या है नीलेश जी के बारे में, ये आप लोगों को अभी पता चल ही गया होगा कि what happens when a really committed person, addresses us. तो आपने यहाँ पे कोई भी एजेंडा नहीं था, सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों की लाइफ जो है ना वो बेहतरीन कैसे हो सकती है. और गीतांजलि ने जैसे कहा है कि yes, it is not about only customers, it's about every relationship. जिस तरह इन्होंने एग्जाम्पल दिया है स्पाउस के लिए, सेम थिंग कैन बी डन फॉर चिल्ड्रन. तो मैं जब यहाँ बैठी थी तो मैं वही सोच रही थी कि हाउ कैन आई डिलाइट माई डॉटर, हाउ कैन आई डिलाइट माई कलीग्स, हाउ कैन आई डिलाइट माई स्टूडेंट्स. सो आप लोगों के दिमाग में किस किस के लिए डिलाइट के बारे में ख्याल आया? आई वुड वॉन्ट यू टू टेल अस, पुट इन द चैट कि अभी आप ये सेशन से किस किस एरियाज में
ये लर्निंग लेके जाने वाले हो? May I know that in the chat? या फिर आप also you can tell us what is your takeaway from this session? All areas, family, friends, relatives. Yes. So नीलेश जी, thank you very much. आप थोड़े से, मेरे को समझ में आ रहा है आपकी तबीयत थोड़ी सी, your voice is little bit not perfect, so you are not well, you are traveling. और कस्टमर डिलाइट मैं नीलेश जी के बारे में बताऊंगी. कल 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया और कह रहे हैं कि दर्शना, व्हाट मोर यू एक्सपेक्ट मी टू टॉक टू योर कम्युनिटी. सो लाइक नीलेश जी, यू आर द बेस्ट. आई मीन, मैं क्या बताऊं, बट जब उन्होंने मुझे पूछा ना, मैं 2 मिनट के शांत हो गई. सो लाइक व्हाट, सो कैन यू बीट दैट? एंड आई वाज इन अ मीटिंग विद प्लान टू विन सुपर लीडर कम्युनिटी. मैंने तुरंत बोला कि नीलेश जी पूछे कि और क्या कर सकते हैं. सो दैट्स आई थिंक कस्टमर लेटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर डिलाइट फॉर मी. और मैं जरूर ये समझती हूँ कि ये पूरी तरह से विदाउट एजेंडा होता है. द सेंटर इज कंप्लीटली दैट अदर पर्सन, पूरी तरह से 100% अदर पर्सन, 0% मी. एंड नीलेश जी, थैंक यू फॉर दिस लर्निंग, बिकॉज this brings entire respect that I all the time connect to when I talk to anybody. I mean, कोशिश कर रही हूँ, but thank you for bringing this in my life. और मैं एक चीज आपसे बताना चाहूंगी कि नीलेश जी जो है वो हमारे साथ हर बार, नॉट एवरी सैटरडे, बट हमने उनको रिक्वेस्ट करी है कि एटलीस्ट एक बार, महीने में एक बार आपको आके हमारे कम्युनिटी से बात करनी है, बिकॉज ही इज अ भंडार ऑफ सच डिस्टिंक्शंस. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लिसन टू नीलेश जी एटलीस्ट वंस इन अ मंथ? Yes, all of us. Yes. Yes. और मैंने नीलेश जी से परमिशन भी नहीं ली है, बट आई एम श्योर कि मैं उनके पास से डिमांड कर सकती हूँ कि यू हैव टू कम एंड एड्रेस दिस कम्युनिटी. Thank you. So Nilesh ji, once again, thank you for bringing this up. And I know excellence. हम जब नीलेश जी मुंबई में आए थे, तो we had these opportunity to listen to him for 2 hours. तभी उन्होंने customer delight और excellence, creating excellence के बारे में बात करी थी. और ये मैंने विकास ने और शलाका और सोनाली, हम चारों ने अटेंड किया था. विकास, ये 2 महीने की पहले की बात, अभी तक दिमाग से निकला नहीं है, अभी तक वो एक्सीलेंस निकला नहीं है. Yes, Vikas? Yes, I agree with you. Yeah. So the point is that we are going to talk about excellence in the coming session. So stay tuned to all the expert speak sessions by Plan to Win. इसके लिए आपको Plan to Win का ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक शलाका ने हमारी जो फाउंडर मेंबर, हम लोग 7 लोग जो है साथ में काम कर रहे हैं. तो कैन एवरीबडी से अ क्विक हाई टू एवरीबडी सो दैट दे कैन सी यू? Yes, you have to say it and you can. Hi. Yes. Rajesh, are you there? Yeah. So, Rajesh? Okay. So, Rajesh, Gitanjali, Darshan. Yes, Rajesh. Yes. Okay. So, Rajesh, Gitanjali, Darshana, Vikas, Arun, Shalaka, and Seema. So, Seema, are you there on the in the meeting? Can you say a hi to everybody? Yeah, I am. Hi, everybody. Good morning. Perfect. Thank you. तो हम लोग 7 लोग जो है ना, आपको मैक्सिमम बेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए प्लानिंग और विनिंग बहुत इजी होना चाहिए. How many of you think that you can easily plan to win? How many of you think that it's very easy for you to plan and win, and it is possible? अगर आपके पास प्लानिंग की आदत है तो आप आराम से प्लान करके विन कर सकते हो. मगर यहाँ पे 3 चीजें होती है गाइस, जस्ट 1 मिनट. 3 चीजें होती है. नंबर 1 ease, number 1 grace, and number 3 is creativity. Creativity is the foundation of all your plannings and winning. और अभी नीलेश सुराना इन्होंने हमको बताया कि क्रिएटिविटी आप कैसे ला सकते हो आपके बिजनेस में और आपके रिलेशनशिप्स में. So to close this particular meeting, we are doing a session
on creating a master plan for 2022. और मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने ऑलरेडी अपने मास्टर प्लान पे काम करना शुरू कर दिया होगा. अगर नहीं किया है तो आप हमारा हार्ट टू हार्ट ग्रुप ज्वाइन करिए. Creating a master plan for 2022 is happening tomorrow. So you will get all the information about this session on the group. So thank you so much, Gitanjali. I'm handing over to you and you can complete the session. Thank you, Darshana. And I can't thank you enough, Nilesh ji, for accepting our offer. You're phenomenal. You're like another Amitabh Bachchan for us. Believe me, and I'm saying from my heart, and I'm echoing a lot of us here. And Uttara said you're like a 1,000-watt bulb that has people getting attracted to you. We had 70 people after 2 weeks of holiday, which speaks for itself. Nilesh, you're phenomenal. Thank you so much once again. And everyone, keep rocking. 2022 is ours. Let's enter 2022 power packed. Every Saturday we will. It's an endeavor to bring to you and our community, to nurture and nourish our community and ourselves alongside with things that matter to us. If you have any suggestion, I'd love you to give me personally any suggestion on my direct message, WhatsApp. My number, I'm putting it here, for any topic or any resource that you think might be great for this expert speak. So with this, I say thank you once again for sparing some time, your valuable time on a Saturday morning, and see you again next Saturday, 8 to 9. Thank you very much. Thank you. और thank you Darshana for noticing it कि मुझे जुकाम हो गया है. Thank you very much. Take care, Nilesh ji. God bless you, everybody. Take care. Bye-bye. Thank you, everyone. Bye-bye. Thank you. Thank you.